Assalamu alaikum students, how are you doing? Hope you will be fine. So nowadays we are doing active and passive voice, and in the previous clip we practiced conversion of active voice into passive voice for present indefinite tense, past indefinite tense, future indefinite tense and modal auxiliary verbs. So we have done all the indefinite tenses, and also we have done all the practice of modal auxiliary verbs for conversion of passive voice. So today we will do practice for the transformation of active voice into passive voice for present continuous tense, for past continuous tense, for present perfect tense, for past perfect tense, and for future perfect tense. So come to the practice. So we are going to start with present continuous tense, and you can see that the active voice, the structure of active voice means that this is the structure of present continuous tense that is written here, and the sentence is my sister is writing an essay. So my sister is, analyze the sentence, my sister is subject and is helping verb, writing is main verb, and an essay is object. Now convert it, transform it into passive voice. So first of all you will write subject. What is the subject here? The old object. So the old object is an essay. So the new subject will be an essay. And according to this object and the tense of the sentence, what will be the be verb? Is. An essay is, and being, there is being in the formula, plus V3. So what will be the V3? Writing. This will be written. Written by, after that, after being verb, by will be there, and written by. My sister is subject here, so here will be object. By my sister. So an essay is being written by my sister. Now come to the next sentence. They are not enjoying the party. So this is the negative sentence. Now ये subject है, are helping verb है, enjoying main verb है, and the party is, the party object है. तो नया सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास? नया सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा? द पार्टी. और द पार्टी सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए राइट बी वर्ब क्या होगा? राइट बी वर्ब होगा इज. सो द पार्टी इज not, the party is now not, and after not there will be the being verb. अच्छा, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कर रहे हैं, और कंटिन्यूस टेंस में जो बी की जो फॉर्म यूज़ हो रही है, बी वर्ब की जो फॉर्म यूज़ हो रही है, वो V4 है, बीइंग है. तो कंटिन्यूस टेंसेस में, दोनों कंटिन्यूस टेंसेस में, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, हम यहाँ पर बी की कौन सी फॉर्म लेंगे? बीइंग फॉर्म लेंगे. बीइंग की प्रेजेंस ये शो करती है कि दिस इज कंटिन्यूस टेंस. The presence of being shows that this is continuous tense. Suppose there is any passive voice, there is a sentence of passive voice. Passive voice का कोई sentence है आपके पास और उसमें being मौजूद है, इसका मतलब है कि वो कौन सा tense है? Present continuous tense है. So the party is not being, and enjoying is the verb here. Enjoy is the verb here. This will be converted into, किस में convert हो जाएगा ये? V3 में. और V3 क्या होगा enjoy का? Enjoyed. So the party is not being enjoyed by, what will be the new object, or what will be the object of passive voice? This they will be converted into them. So what is the sentence now? The sentence in passive voice is the party is not being enjoyed by them. Now come to the next sentence. This is interrogative.
Is the board announcing the results? Helping verb, the board is subject, announcing is verb, and the result is object. The results. So if object is the results, the helping verb will be is or are? Are. So are the results. Are the results now being, and V3, announcing is there, the main verb is announce, so this will be announced. Are the results being announced by, now the board was subject here, and now the new object will be the board. So the sentence is, जो remaining part है sentence का वो भी लिखना है. So don't forget this, इसको ना भूलें. And now question mark. Are the results being announced by the board the next week? Now come to past continuous tense. The sentence here is mother was calling us, and mother is subject, helping verb was, calling main verb, and us is object. तो हमारे पास नया सब्जेक्ट क्या बनेगा? अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वी में. एंड अकॉर्डिंग टू वी व्हाट विल बी द बी वर्ब? क्या बी वर्ब होगा? वर. सो वी वर. एंड बीइंग, यू कैन सी दैट बीइंग इज एवरीवेयर इन कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस में आपको बीइंग मिलेगा बी वर्ब के तौर पर. तो वी वर बीइंग, V3 लिखिए कॉल का V3 क्या होगा? कॉल्ड. वी वर बीइंग कॉल्ड by, एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जो यहाँ सब्जेक्ट था मदर. वी वर बीइंग कॉल्ड बाय मदर. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. The laborers were constructing the road. So the laborers is subject, were is helping verb, constructing is verb, and the road is object. अब ये जो object था यहाँ पर ये passive voice में subject बन जाएगा. तो the road, अच्छा हम इसको चूँकि नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, देयर इज़ नॉट मिसिंग, तो हम यहाँ नॉट लिख लेते हैं. ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा द लेबरर्स वर नॉट कंस्ट्रक्टिंग द रोड, क्योंकि हम इसको नेगेटिव में करना चाह रहे थे. तो यहाँ पर द रोड नया सब्जेक्ट होगा, एंड द रोड के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब वॉज होगा. द रोड वॉज नॉट, बीइंग लगाइए. द रोड वॉज नॉट बीइंग. V3 कंस्ट्रक्ट, सो V3 विल बी कंस्ट्रक्टेड. V3 कंस्ट्रक्टेड होगा. एंड बाय, और न्यू ऑब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा द लेबरर्स. तो ये सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस में, द रोड वॉज नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द लेबरर्स. So come to the next sentence. This is the interrogative. Were they playing cricket? So helping verb शुरू में आया है क्योंकि ये interrogative sentence है. उसके बाद आपके पास subject है, main verb है और object है. तो यहाँ पर new subject जो होगा वो cricket हो जाएगा. passive voice में नया subject जो बनेगा वो cricket बनेगा, और cricket के लिहाज से जो right helping verb होगा वो was होगा. तो हम was से sentence start करेंगे. Was cricket बीइंग, स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि बीइंग मौजूद है यहाँ पर. उसके बाद हम V3 लिखेंगे. मेन वर्ब हमारे पास प्ले है, तो इसका V3 प्लेड होगा. बाय एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट दे था और ये कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा देम में. So the in passive voice the sentence is was cricket being played by them. So come to the next sentence. अच्छा, आपको ये बात पता है ना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमारी लिस्ट में मौजूद नहीं है. इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं. सो इन प्रेजेंट परफेक्ट यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस. टेंस का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका जो पहला सेंटेंस है उसको पढ़ लेते हैं. दे हैव थ्रोन अवे द रबिश. दे इज सब्जेक्ट हियर, हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, थ्रोन इज द main verb, and thrown away. So we have a phrasal verb here, and the rubbish is object. So इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? जो यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. द रबिश. अब द रबिश के लिहाज से
हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ या हैव? हैज़ होगा, ठीक है। तो द रबिश हैज़, उसके बाद बीन लिखेंगे हम, यू कैन सी द स्ट्रक्चर, फिर V3 लिखेंगे, तो थ्रोन खुद V3 ही है, वही लिख दिया जाएगा, और उसके साथ मौजूद प्रेपोजिशन थ्रोन अवे, उसके साथ मौजूद हम जो भी हमारे पास मौजूद है प्रेपोजिशन या एडवर्ब, हम उसको अलग नहीं करेंगे। द रबिश हैज़ बीन थ्रोन अवे, उसके बाद बाय लिखिए, एंड देन द न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट दे था, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देम में। The rubbish has been thrown away by them. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज़ नॉट रिकग्नाइज्ड मी, तो शी सब्जेक्ट है आपके पास, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, रिकग्नाइज्ड मेन वर्ब है, और मी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो नया सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो पुराना ऑब्जेक्ट था वो कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में, तो मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में। आई के लिहाज से सही हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़ या हैव? The right helping verb will be have. So I have not and been, I have not been. Now V3, recognized itself. The V3, so I have not been recognized by, अब ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट शी था और शी कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, एंड दिस विल बी हर। सो आई हैव नॉट बीन रिकग्नाइज्ड बाय हर। So look at the next sentence. Have you forgotten the answer? So this is interrogative sentence. Have is the helping verb, you is subject, forgotten is main verb, and the answer is object. So अच्छा, आपको जब आप काम करें तो इस तरह बार बार अंडरलाइन नहीं करना है। मैं अंडरलाइन इसलिए कर रही हूँ कि आप समझ सकें कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। बट यू डोंट हैव टू अंडरलाइन अगेन एंड अगेन, even you don't have to underline it the first time. This is not necessary, but you should understand, you should know how to analyze the sentence, how to identify that what is subject, what is verb, or what is object. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको सेंटेंस को एनालाइज करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। सिर्फ इतना ही काम करना है आपको पैसिव वॉइस बनाते हुए या एक्टिव वॉइस बनाते हुए। सो अब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट जो हमारे पास पैसिव वॉइस के लिए बनेगा वो द आंसर है। द आंसर इज सिंगुलर, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज़ या हैव? हैज़। तो हैज़ द आंसर, सब्जेक्ट लिखा हमने हैज़ के बाद, हैज़ द आंसर बीन, और अब हम V3 लिखेंगे। V3 इज़ फॉरगॉटन, तो फॉरगॉटन ही V3 है, एंड आफ्टर दैट बाय, और जो नया ऑब्जेक्ट हमारे पास बनेगा वो यू ही होगा, क्योंकि यू खुद ही सब्जेक्ट है, खुद ही ऑब्जेक्ट भी है, सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, तो हम इसको हमने यहाँ लिख दिया, और अब हमारे पास सेंटेंस हो गया, हैज़ द आंसर बीन फॉरगॉटन बाय you. Now start past perfect tense. So you can see the structure here. The structure of past perfect is subject plus had plus V3 plus object. And the sentence is they had demolished the building. So we have to convert it into passive voice. So they is subject here, had is helping verb, demolished is main verb, and the building is object. Now this, the building, this old object will be converted into new subject. Passive voice में ये क्या बन जाएगा, subject बन जाएगा। तो the building had been, and V3 demolished itself is V3 demolished by, यहाँ पर सब्जेक्ट दे था, ये कन्वर्ट हो जाएगा them में, the building had been demolished by them। अच्छा एक बात देखें, कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा बी वर्ब था, being था, और अब यहाँ पर परफेक्ट टेंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा कौन सा बी वर्ब था, बीन था। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा बी वर्ब है, बीन है। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमें बीन ही मिलेगा, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस का बी वर्ब कौन सा होगा, बीन। देखिए यहाँ पर भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें भी जो बी वर्ब है वो बीन ही है। तो बीन अगर मौजूद है, V3 है बीन, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो समझ जाइए कि ये परफेक्ट टेंस है।
अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस के पैसिव वॉइस में बीन मौजूद है, इसका मतलब है कि वो पास्ट परफेक्ट, वो परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पर हैज़, हैव, हैड की प्रेजेंस आपको बता देगी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है। यहाँ हैड बीन है, इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, आवर फ्रेंड। अगेन यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हुआ, इसको हम नॉट कर लेते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है। आवर फ्रेंड हैड नॉट सेंट अ प्राइज टू अस, तो हम इसको क्या करेंगे, आवर फ्रेंड हमारे पास सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, वी मेन वर्ब है, अ प्राइज ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 अ प्राइज एंड टू अस इज़ ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट नंबर 1 से हम सेंटेंस बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हम कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट की जगह पर हम लिखेंगे अ प्राइज, उसके बाद हेड लिखिए, फार्मूला देखते जाइए, उसके बाद उसमें नॉट है, उसके बाद बीन मौजूद है, V3 हमें लिखना है, सेंट ही V3 है, उसके बाद बाय लिखिए और बाय के बाद फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, यहाँ सब्जेक्ट था आवर फ्रेंड, तो अब क्या बन जाएगा, अब हमारे पास आवर फ्रेंड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, बेहतर है कि जो टू अस है, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको आप इसी जगह पर लिखिए। तो अ प्राइज हैड नॉट बीन सेंट टू अस बाय आवर फ्रेंड, क्योंकि हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जिसको कि हमने सब्जेक्ट नहीं बनाया होता वो उसी तरह सेंटेंस में बरकरार रहता है। सो दिस विल रिमेन अनचेंज्ड। अ प्राइज हैड नॉट बीन सेंट टू अस बाय आवर फ्रेंड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, हैड ही लाफ्ड एट अस। अब यहाँ हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, लाफ्ड एट है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब हुआ, ही सब्जेक्ट, लाफ्ड एट वी, और अस इज ऑब्जेक्ट। अब इसको कन्वर्ट करिए, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टार्ट एट से ही होगा, यहाँ अस सब ऑब्जेक्ट था, ये कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में और ये कन्वर्ट हो जाएगा वी में। हैड वी बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज लाव्ड, लाव्ड ही रहेगी, एंड उसके बाद जो प्रेपोजिशन है वो भी अपनी जगह रहेगा, लाव्ड एट, और हैड वी बीन लाव्ड एट बाय, ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही को अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ही कन्वर्ट हो जाएगा हिम में। So the sentence in passive voice is, had we been laughed at by him. Now come to the future perfect tense. So the formula of future perfect tense is subject, will or shall, plus have, plus V3, plus object. And the sentence here is, we shall have heard the news. We is subject, shall is helping verb, and there are two helping verbs, shall and have, and heard is the main verb, and the news is object. Subject, main verb, and object. तो हम जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, जो नया सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, वो क्या होगा, द न्यूज़। द न्यूज़ के लिहाज से हम विल यूज़ करेंगे या शैल, विल यूज़ करेंगे। उसके बाद आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हैव लिखा हुआ है और हैव के बाद बीन है, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए स्ट्रक्चर है विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन। सिर्फ इतना स्ट्रक्चर आपको याद होगा, बाकी तमाम चीज़ें तमाम सेंटेंसेस में सेम है। सो द न्यूज़ विल हैव बीन, V3 इंसर्ट कीजिए, V3 इज हर्ड एंड बाय, एंड बाय के बाद नया ऑब्जेक्ट लिखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था, वी, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अस, सो द न्यूज़ विल हैव बीन हर्ड बाय अस। Come to the next sentence, they will not have paid the bill. They is subject, will helping verb, have helping verb, paid is main verb, and the bill is object. तो नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, the bill। the bill के लिहाज से आप will यूज़ करेंगे या shall, will यूज़ करेंगे, not लिखेंगे उसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, have been,
एंड V3 अप्लाई करेंगे, पेड इज इटसेल्फ V3 एंड नाउ बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, दे कन्वर्ट हो जाएगा them में. सो द न्यू सेंटेंस इज द बिल विल नॉट हैव बीन पेड बाय them. नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस. Will she have kept the pickle in the jar? Will is helping verb. अब जब हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा बाहर आता है? विल बाहर आता है या शैल बाहर आता है. शी इज सब्जेक्ट, हैव भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मौजूद है, कैप्ट मेन वर्ब है, द पिकल इज यहाँ ऑब्जेक्ट है. तो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो विल से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट जो है वो द पिकल है. द पिकल इज सिंगुलर नाउन, उसके साथ आपको विल ही लगाना है. विल द पिकल हैव बीन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की और थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है. कैप्ट, सो विल द पिकल हैव बीन कैप्ट एंड नाउ बाय, और नया ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास था शी, सो शी विल बी कन्वर्टेड इनटू हर. सो विल द पिकल हैव बीन कैप्ट बाय हर एंड अगेन इन द jar. Right, so don't forget the remaining part of the sentence. Will the pickle have been kept by her in the jar? Okay girls, so tenses ended here. Inshallah in the next class we will do some other points, some other topic of active and passive voice. So practice this, do this work in your registers, and inshallah next week we will start some other topic of passive voice. Till then, take care.